Hello friends, welcome to my channel. Today we are starting with class 6 history chapter 7 from a kingdom to an empire. So Roshan's rupees. Roshan clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a similar face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. What were the lions there for? She wondered. कि lions क्यों हैं यहाँ पे? So the lions that we see on our notes and coins have a long history. कि बहुत long history है. They were carved in stone and placed on the top of massive stone pillar at सारनाथ में वो carve हुए थे और एक बहुत massive stone pillar पे रखे गए थे. Ashoka was the one of the greatest rulers known to history and one on his inscriptions inscriptions were inscribed on pillars as well as on the rock surfaces. तो अशोका हमें पता है बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट रूलर है और उनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं दे वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स और पिलर्स पे भी होती थी और रॉक्स पे भी होती थी. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was known as empire. कि उनका जो किंगडम था उसको एम्पायर क्यों कहा गया. Now the empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. तो जिस एम्पायर पे अशोका ने रूल करा वो उनके ग्रैंडफादर ने फाउंड करा था who is Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. Chandragupta was supported by a wise man named Chanakya. तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो उनको एक वाइज मैन ने सपोर्ट करा था विच इज चाणक्य और कौटिल्य उनका नाम है. मेनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र. तो उनके बहुत सारे आइडियाज किस बुक में लिखे गए हैं? अर्थशास्त्र. Now dynasty, when the member of the same family became rulers one after another, the family is often called dynasty. The Mauryas were the dynasty where three important rulers, Chandragupta, his son Bindusara and Bindusara son Ashoka. तो डायनेसिटी किसको कहते हैं? जब मेंबर सेम फैमिली के मेंबर्स ही रूल करते हैं उसको, तो उसको हम डायनेसिटी कहते हैं. तो मौर्यास की डायनेसिटी थी क्यों? क्योंकि वहां पे तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स ने रूल करा था. हु वर चंद्रगुप्त मौर्य, his son Bindusara and Bindusara's son Ashoka. There were several cities in the empire marked with black dots on the मैप. की काफी सारी सिटीज थी जो मैप में ब्लैक कलर पे मार्क है. these were included these included the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन. कहाँ पे? पाटलिपुत्र दिख रहा है, उज्जैन दिख रहा है, तक्षशिला दिख रहा है. तक्षशिला was the gateway to north west including central asia. तो जो तक्षशिला थी हमारी वो कहाँ पे है? हमारी बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में है. तो वो एक गेटवे भी की यहाँ से बाहर के लोग आते थे. While उज्जैन lay on the route from north to south, तो उज्जैन के नॉर्थ से साउथ को जोड़ती थी. Merchants, officials and craft persons probably lived in these cities में रहते थे. क्यों? क्योंकि उनको आना जाना पड़ता था बार बार, तो वो पास ही में रहते थे. सपोज किसी का बाहर, किसी का वेस्टर्न कंट्रीज में जाने का है तो वो इधर रहता था तक्षशिला में. किसी को नीचे साउथ में काम करना है, अपना ट्रेड करना है, मर्चेंट्स होते, क्राफ्ट पर्सन है, उनको अपना सामान बेचना है, तो वो उज्जैन में या तक्षशिला में रहेंगे. तो ऐसे वहां पे रहते थे. In other areas, there were villages of farmers and herders. All other और दूसरे एरियाज में herders रहते थे, farmers रहते थे. In some areas such as central India, there were forests where people gathered food, produced and hunted animals for food. कुछ सेंट्रल इंडिया के कुछ एरियाज में लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते थे और हंट करते थे एनिमल्स को. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. हमें पता है कि डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे. दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ. डिफरेंट अलग अलग तरीके के खाने बनते थे, खाना खाते थे, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे. हाउ आर द एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम? अब एम्पायर्स किंगडम से कैसे डिफरेंट हुआ? Emperors need more resources than kings because empires are greater than kingdoms.
and need to be protected. तो एम्पायर्स एम्परर्स रूल करते थे, किंगडम को किंग्स रूल करते थे। तो एम्पायर्स बहुत रिसोर्सेस चाहिए थे उसको, क्यों? क्योंकि वो किंगडम से बड़े होते थे, ठीक है, बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस, और उनको बहुत सारे ऑफिशियल्स चाहिए होते थे जो टैक्सेस कलेक्ट करें। Now ruling the empire, as the empire was so large, different parts were ruled differently. क्योंकि empire बहुत बड़ा होता था, different parts को अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craft persons, and traders who lived in villages and towns in the area. तो जो पाटलिपुत्र के आसपास एरिया था, क्योंकि पाटलिपुत्र हमारी कैपिटल सिटी है, वहां पे एम्परर रहते हैं, तो जो आसपास के एरियाज थे पाटलिपुत्र, वो डायरेक्ट कंट्रोल करते थे एम्परर। और डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे फ्रॉम द पीपल। नाउ ऑफिशियल्स आल्सो पनिश दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर। तो जो ऑफिशियल एम्परर के को डिसोबे करता था, उनके रूल्स नहीं मानता था, तो उनको पनिशमेंट भी मिलती थी। मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज, उनको सैलरीज दी जाती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन दीज ऑफिशियल्स। मैसेंजर्स आते कि मैसेजेस आने की, कैसे क्या बाहर क्या चल रहा है, कोई हमला तो नहीं कर रहा, तो इसके मैसेजेस आते थे। और स्पाइस क्या इन ऑफिशियल्स पे वॉच रखते थे कि ये कोई मतलब हमें बैक स्टैप तो नहीं कर देंगे, मतलब हमें पीछे से तो हमला नहीं कर देंगे हमारे ऊपर। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, एंड विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प से एम्परर इनको सुपरवाइज करते थे। देयर वर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। अदर एरियाज भी होते थे, तो वो कैसे रूल किए जाते थे? प्रोविंशियल कैपिटल से वो रूल किए जाते थे, मीन्स तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर was some amount of control from Patliputra, the royal princes were often sent as governors. Local customs and rules were probably followed. तो जो आसपास नहीं थे पाटलिपुत्र के, उनको क्या प्रोविंशियल कैपिटल जैसे वो रूल करते थे, तक्षशिला और उज्जैन वो रूल करते थे। कुछ कंट्रोल होता था पाटलिपुत्र से, बट मेनली वर कंट्रोल फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल्स। जैसे रॉयल प्रिंसेस भेज दिया गवर्नर के रूप में, और वो देख रहा है सब कुछ। बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स। बहुत ज्यादा एरिया है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है ये लोग, ये जगह। Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. मौर्यस ने क्या ट्राई टू कंट्रोल कि रोड्स और रिवर्स को हम कंट्रोल करें, क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते थे ट्रांसपोर्ट के लिए, और हर एक रिसोर्सेस कलेक्ट करना वर अवेलेबल है टैक्स और ट्रिब्यूट के रूप में जो अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल अस दैट नॉर्थ वेस्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स and South India for its gold and precious stone. It is possible that these resources were collected as tribute. क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट है वो ब्लैंकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और साउथ इंडिया गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए, तो एज अ ट्रिब्यूट वो यही चीजें इकट्ठे करते थे ट्रिब्यूट के लिए। ट्रिब्यूट क्या होता है? अब अनलाइक टैक्सेस व्हिच वर कलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। टैक्सेस तो जबरदस्ती रेगुलर बेसिस पे कि कलेक्ट कराई जाता था, बट ट्रिब्यूट कब कलेक्ट करता था? जब लोगों के पास पॉसिबल होता था कि वो दे पाएंगे ये चीजें, चाहे वो जबरदस्ती दे या फिर मन से दे, उनको देना पड़ता था। Now there were also the forested regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to modern officials. अब जो हमने पढ़ लिया कि जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे वो क्या देते थे, साउथ इंडिया में रहते थे वो क्या देते थे, पर अब जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते थे वो क्या देते, उनको क्या था, वो इंडिपेंडेंट ही थे, बट उनसे एक्सपेक्ट था कि वो एलिफेंट्स देंगे फॉर द आर्मीज, टिम्बर देंगे, हनी देंगे, ये सब देंगे मॉडर्न ऑफिशियल्स को।
Now the emperor and the capital city. Megasthenes was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of West Asia called Seleucus Nicator ने मेगास्थेनेस को भेजा था एम्बेसडर के रूप में कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त में. So Megasthenes wrote an account about what he saw. उन्होंने तो मेगास्थेनेस ने लिखा कि उन्होंने क्या देखा. The occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal प्रोसेशंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था जब जो एम्परर है वो पब्लिक के सामने आता था. ही इज कैरिड इन गोल्ड प्लैंक्विन में उनको मतलब वो ट्रेवल करते थे उससे. हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किए हुए एलिफेंट्स इनके गार्ड्स राइड करते थे. Some of the guards carry trees on which live birds, including the flock of trained parrots circle around the head of the emperor. कुछ ट्रीज भी कैरी करते थे जहाँ पे बर्ड्स रहती थी और मतलब ट्रेन्ड पैरट्स रहते थे. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food before he eats. He never sleeps in the same bedroom for 2 nights. के लिए वो same bedroom में नहीं सोते थे. Now and about Patliputra, modern Patna, he wrote, this is large and beautiful city. It is surrounded by massive wall. It has 570 towers and 64 gates. The houses of 2 or 3 stories are built of wood and mud brick. The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds. तो उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब करा कि बहुत सुंदर सिटी है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं. Now Ashoka, a unique ruler. The most famous Mauryan ruler was Ashoka. तो सबसे ज्यादा जो famous Mauryan ruler थे वो कौन थे? Ashoka. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने अपना मैसेज कैसे लोगों तक पहुंचाया? इंस्क्रिप्शंस के थ्रू. Most of the Ashoka's inscription प्राकृत में थे and were written in Brahmi स्क्रिप्ट. तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमने देख लिया कि प्राकृत क्या लैंग्वेज है? लैंग्वेज ऑफ द पीपल. इसमें लिखे होते थे ताकि लोगों को आम ऑर्डिनरी पीपल को समझ में आ पाए. Now Ashoka's war in Kalinga. Kalinga is the ancient name for coastal Orissa का ancient नाम क्या है? Kalinga. So Ashoka fought a war to conquer Kalinga. के लिए अशोका ने war लड़ा. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. तो जब war के बाद वो इतने ज्यादा मतलब horrify हो गए खून देख के कि उन्होंने decide करा कि वो इसके बाद war नहीं करेंगे. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. उन्होंने जीतने के बाद भी conquest छोड़ दिया. Now Ashoka's inscription describing the Kalinga war. This is what Ashoka declared in one of his inscription. 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were captured and more than 1 lakh people were killed. This filled me with sorrow. Why? Whenever an important land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and to servants die or lose their loved ones. This is why I am sad and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well. I believe that winning people over through Dhamma is much better than conquering them through force. I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war. Instead, they should try to think about how to spread Dham. तो उनको कलिंगा के वॉर अब उन्होंने क्यों छोड़ दिया? कॉन्केस्ट अपना जीतने के बाद भी उन्होंने नहीं लिया, उड़ीसा का पार्ट नहीं लिया, जिस कलिंगा वॉर कलिंगा नहीं लिया. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कैप्चर हुए, बहुत ज्यादा लोगों को किल किया गया, तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा कि बहुत लोग बेमतलब में ही मारे गए. तो उन्होंने कहा कि अब हम उसको अब धामा को मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूंगा. हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धामा और लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगा. तो इसलिए उन्होंने धामा इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा. धर्मा का हम प्राकृत में धामा कहते हैं. Now what was Ashoka's Dhamma? So Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice.
He felt that just as a father tries to teach his children, he has the duty to instruct his subject. He was also inspired by the teachings of Buddha. तो जो अशोका का धामा था वो ऐसा नहीं, धर्मा वो ऐसा नहीं कि गॉड को वो वर्शिप करें या फिर सैक्रिफाइसेस दे, ऐसा नहीं था। उनको क्या था कि जैसे एक फादर अपने बच्चों को सिखाते तो उनको भी सिखाना है इस सब्जेक्ट के बारे में। और वो बहुत ज्यादा इंस्पायर किससे हुए? बुद्धा से। हम ये चैप्टर 6 में पहले से ही पढ़ चुके हैं। इफ यू हैडंट वॉच इट, गो वॉच नाउ। There were a number of problems that troubled him. बहुत सारे problems थे वो उनको trouble करते थे। People in the empire followed different religion and this sometimes led to conflict. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in family and amongst neighbors. Ashoka felt that it is his duty to solve these problems. तो क्या डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते थे और कभी कभार उनमें लड़ाई भी होती थी। एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था, स्लेव्स और सर्वेंट्स को इल ट्रीटेड किया जाता था। तो उन अशोका को लगा कि ये उनकी प्रॉब्लम है और उनको सॉल्व करनी है ये। he appointed officials known as Dhamma Mahamata who went from place to place teaching about। तो उन्होंने किसको अपॉइंट करा? ऑफिशियल्स को अपॉइंट करा, धामा महामाता हूँ, जो जगह जगह जाके लोगों को, जिन्होंने उसके धर्मा के बारे में टीच करा। Besides, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves। और क्या अशोका इंस्क्रिप्शंस यूज करते थे ताकि वो अपनी बात ऑर्डिनरी पीपल, अपनी जनता तक पहुंचा पाए, और जो नहीं पढ़ पाते थे ऑफिशियल्स रीड करते थे उनके लिए। Now Ashoka also sent messengers to spread ideas about dharma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Sri Lanka। उन्होंने बहुत सारे मैसेंजर्स भेजे, बाहर भी भेजे, मींस अदर लैंड भी भेजे, जैसे सीरिया में भेजे, इजिप्ट, ग्रीस, और अपने खुद के बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा। उन्होंने ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस। Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals। उन्होंने रोड्स को बिल्ड करा, वेल्स खुदवाए और रेस्ट हाउसेस बिल्ड करवाए, मींस टाइप ऑफ होटल्स बिल्ड करवाए। बिसाइड्स, उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अरेंज करा कि जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट हो पाए ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। Now Ashoka's message to his subjects: people perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. These rituals are not useful. If instead people observe other practices, this would be more fruitful. अब these are being gentle with slaves and servants, respecting one's elders, treating all creatures with compassion, giving gifts to Brahmins and monks. It is both wrong to praise one's own religion or criticize another. Each one should respect the other's religion. If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion. Therefore, one should try to understand the main ideas of other religion and respect it। तो क्या है, उन्होंने कहा कि जो हम डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं वो ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये रिचुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी बजाय हमें क्या क्या करना चाहिए? जेंटल बिहेव करना चाहिए अपने सर्वेंट्स और स्लेव्स के साथ, अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक क्रिएचर्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, गिफ्ट्स देने चाहिए ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को। और ये गलत है कि हम अपने रिलीजन की बड़ाई करें और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करें। ठीक है, तो उन्होंने ये सब मैसेज कहा। So with this, our chapter is completed. If you had any doubt in this chapter, do comment in the comment box, and please like this video, share it with your friends, and subscribe the channel. Thank you.